بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ موجودہ حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ ہم یہ کورس کر پا رہے ہیں، اور آپ سبھی لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے کلاس کو وقت پر جوائن کیا اور اتنی محنت اور لگن کے ساتھ آپ لوگ یہ اردو لینگویج کورس سیکھنا چاہتے ہیں اور اس کو کر رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مقصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے، اور آپ کے لیے جو بھی مشکلات پیش آتی ہیں، جو بھی چیزیں آپ کو مشکل لگتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا کرے۔ تو ساتھیوں، یہ جو اردو کورس ہے ہمارا، اس کے جو بھی رولس اینڈ ریگولیشنس ہیں اب تک ہم نے سارے پڑھ لیے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ اس کا ہم ریویژن کرتے ہوئے اور تھوڑی سی اب جو اگلے لیول کی طرف بڑھیں گے، اور ہمارا اگلا لیول جو ہوگا وہ رہے گا رائٹنگ کا ہمارا، کہ اب ہم کچھ لفظوں کو خود سے بنا کر لکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے نظر ڈال لیتے ہیں ایک بار ریویژن پر کہ اب تک ہم نے کیا پڑھا۔ اردو لینگویج کورس میں جب ہم نے پہلا قدم رکھا تھا تو ہم نے یہ سمجھا تھا کہ سب سے زیادہ جو اہم ہوتا ہے وہ ہوتی ہے اس کی پروننسیشن، یعنی کہ الف سے لے کر یا تک حروفوں کی ادائیگی۔ کوئی بھی زبان کو کے جو لفظ ہوتے ہیں وہ ہمارے لیٹر سے مل کر بنتے ہیں۔ ایک لیٹر جو ہوتا ہے وہ حروف کہلاتا ہے، اور لیٹر جب ورڈ میں تبدیل ہوتا ہے تو وہ ہمارا لفظ کہلاتا ہے۔ اور لفظوں کا استعمال کرتے ہوئے جب ہم سینٹینس بناتے ہیں تو وہ ہمارا اردو میں جملہ کہلاتا ہے۔ تو کسی بھی لینگویج کو جب ہم سیکھتے ہیں تو اس کے کچھ مقرر لیٹر ہوتے ہیں جن سے بن کر الفاظ بنتے ہیں۔ تو یہاں پر اردو زبان میں، اردو لینگویج میں الف سے لے کر یا تک حروف تہجی اپنے آپ میں معنی رکھتے ہیں۔ جی ٹیپو سلطان، آپ کا کوئی سوال ہے؟ میم آواز بہت کم آ رہی ہے، تھوڑا سا بڑھائیں گے کیا مائک کی آواز یا والیوم اسپیکر جو ہے تھوڑی سی سلو آ رہی ہے میم۔ حروف تہجی کی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ الف سے لے کر یا تک حروفوں کی آواز کس طرح سے نکلتی ہے۔ جب تک یہ ہمارا کلیئر نہیں ہوگا تب تک ہمیں لفظ بنانے میں ان کی پروننسیشن کلیئر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم نے یہاں پر الف سے لے کر یا تک سبھی حروفوں کی ادائیگی کو سیکھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے 2 ٹیبل ایک الگ سے ایکسٹرا تیار کی تھی کہ اردو حروف اکارڈنگ ٹو انگلش الفابیٹس، یہ ہماری پہلی ٹیبل تھی، جس میں سے ہم نے جانا تھا کہ اگر ہم رومن ٹو اردو میں اگر کوئی لفظ ٹرانسفر کر رہے ہیں تو وہ کس طریقے سے کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے یہ جو ٹیبل تیار کی تھی وہ انگلش الفابیٹس کے حساب سے کی تھی۔ اس کے بعد ایک ٹیبل ہم نے اور تیار کی تھی، وہ ہندی الفابیٹس کے حساب سے کی تھی ہم نے، جو ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم ہندی میں کوئی لفظ لیتے ہیں اور ہندی میں لفظ لے کر اس کو اردو میں ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس ٹیبل کی مدد سے آپ اس کو بآسانی کر سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ آپ کو پتہ ہو کہ ہر حروف کا اپنا اپنا کیا رول ہے۔ آپ لفظوں کو تبھی بنا پائیں گے جب آپ کو حروفوں کے رول پتہ ہوں گے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک ایک حروف کو پھر آپ کو رول پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب ہم آگے بڑھے تھے تو ہم نے حروفوں کا کھیل یعنی کہ دیکھ کر سمجھا تھا ہم نے کہ ہمارے سارے حروف کلیئر ہیں یا نہیں، اس لیے ہم نے یہ کھیل تھوڑا سا کھیلا تھا۔ اس کے بعد سے کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ یہ جو لفظ ہے یہ ہمارا جو آتا ہے یہ اردو لفظ اردو زبان کا نہیں ہے، یہ فارسی کا شبد ہے۔ لیول 2 میں ہم نے حروفوں کو ملاتے وقت حروفوں کی شکل کو جانا تھا کہ الف کا رول کیا ہوتا ہے۔ میں ایک بار پھر سے آپ کو سبھی
पूरा कोर्स रिवाइज कर रही हूँ आज की क्लास में कि पूरे कोर्स में हमने क्या पढ़ा है। तो अलिफ का जो रूल आपको बताया गया था वो ये बताया गया था आपको कि अलिफ अगर किसी लफ्ज को लिखने के लिए स्टार्टिंग में आएगा तो फिर वो अपने आगे किसी दूसरे हुरूफ को नहीं जोड़ेगा, वो अलहदा रहेगा। उसके आगे फिर जो लफ्ज तो पूरा बन जाएगा लेकिन उसके आगे का हुरूफ अलग, अलिफ में नहीं जुड़ेगा, वो अलग रहेगा। चाहे आप अलिफ से कुछ भी लिख रहे हो, आप चाहे अदरक लिखें, आम लिखें, आमना लिखें या कुछ भी लिखें आप अलिफ से, ठीक है, तो अलिफ अलग रहेगा और बाकी के अल्फाज अलग होकर लिखे जाएंगे। लेकिन अलिफ एंड में आ सकता है, आपका एंड में आ सकता है, आखिर में आ सकता है, आखिर में आ सकता है, बीच में आएगा तो फिर अगर कोई ऐसा लफ्ज है, कोई ऐसा लफ्ज है जिसमें अलिफ बीच में आ रहा है तो फिर वो अगला वाला हरफ उसमें नहीं मिलाएगा। बस अलिफ का ये रूल आपने ध्यान रखना है कि अलिफ बीच में कहीं भी ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर इस तस्वीर में आराम से देख सकते हैं कि यहाँ अगर अलिफ से कोई अल्फाज बन रहा है, कोई लफ्ज अगर बन रहा है तो अलिफ बिल्कुल अलग है, और अलिफ अगर एंड में आएगा तो बिल्कुल इस तरीके से आएगा, ये अपने आगे किसी भी हुरूफ को नहीं जोड़ेगा। इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। उसके बाद हमने ऐसी शक्लों की बात की थी जो एक जैसी नजर आती है हमें उर्दू जबान में, ऐसी शक्लों की हमने बात की थी। और वो हुरूफ कौन से थे वो हमने बताया था आपको कि बे पे ते टे से नून ये है। उसको याद रखने का तरीका हमने आपको ये बताया था कि आप एक शोशा लगाएंगे। अच्छा, आप इस शोशे को इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर खुद को आपको याद दिलाना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ये जो बे है और अगर हमने इसका बे का आधा लिखा और इसके नीचे नुक्ता है तो ये भी बे कहलाएगा, अगर हमें इसको अपनी जबान में याद रखना है तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं हम। और दूसरी चीज हमने ये सीखा था कि ये जो शक्लें हैं बस एक जैसी होती हैं, इसमें बस सिर्फ शोचे का फर्क होता है। एक शोचा लगाकर अगर आप इसके नीचे एक नुक्ता, और नुक्तों का फर्क है, नीचे नुक्ता है तो क्या है, ऊपर नुक्ता है तो क्या है। जो नुक्ते नीचे लगे हुए हैं वो नुक्ते नीचे लगेंगे शोशे में, जो नुक्ते ऊपर लगे हुए हैं वो नुक्ते ऊपर लगेंगे। ते के लिए आपको तोए बनाना है और हे के लिए आपको सी बनाना है, बस इतना फर्क है। ये आपको बताया गया था इन शक्लों के हवाले से। और ये जो इनके रूल है, जैसे कि हमने अलिफ का रूल पढ़ा था कि अलिफ जो है वो अपने आगे किसी भी हरूफ को नहीं जोड़ेगा। लेकिन बे पे ते टे से नून ये है, इनमें से कोई सा भी ऐसा हरूफ नहीं है जो अपने आगे हरूफ को नहीं जोड़ेगा। ये अपने आगे भी जोड़ेगा और ये अपने पीछे भी जोड़ेगा, ठीक है। तो ये कहीं भी आ सकता है, ये चीज का आपको पता होना चाहिए कि ये कहीं भी आ सकता है। कहीं भी आने का मतलब ये है कि अगर बस आपको निशानदेही जो रखनी है, आपको जो याद रखना है वो आपको नुक्ते याद रखने हैं, ठीक है। आपको सिर्फ नुक्ते याद रखने हैं, नुक्ते याद रखने हैं, ये याद रखना है कि टे भी हो सकता है, अगर तोय है तो टे होगा, ठीक है। तोय के हवाले से बात एक ये है क्योंकि हमने अड़े जो सीखा था वो भी हमने सीखा था कि उसके ऊपर भी तोय लगता है छोटा सा। तो अड़े का तो खुद का रूल है, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो इसीलिए बताया जा रहा है आपको कि इस शोशे को बस आपने याद रखना है और इससे मिलके आपके सारे अल्फाज बनेंगे। और बे पे ते ते से नून ये है, ये वो हरूफ हैं जो एक जैसे एक ही तरीके से बनाए जाते हैं, एक ही रूल है इनके। ये अपने आगे भी हरूफ को जोड़ लेते हैं और अपने पीछे भी हरूफ को जोड़ लेते हैं। उसके बाद जीम चे हे खे के ताल्लुक से बात ये थी कि तस्वीर में देखने का बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको तस्वीरें भेजी भी गई हैं, स्लाइड्स आपको सभी भेजी गई हैं कि जीम से कोई लफ्ज अगर जीम चे हे खे के ताल्लुक से सबसे पहली बात जो याद रखने की है वो यही है कि ये भी वो हरूफ हैं जो कहीं पर भी आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं, शुरू में भी आ सकते हैं और आखिर में भी आ सकते हैं। इनका कोई ऐसा रूल नहीं है जैसे अलिफ का है। अलिफ एक इकलौता है और बाकी बता दिया जाएगा अलिफ के अलावा कौन सा ऐसा है। अलिफ के अलावा जो है वो बता दिया जाएगा आपको।
ایک تو الف ہے اور ایک واو ہے. واو بھی اپنے آگے کسی کو نہیں جوڑتا ہے. الف اور واو ایک جیسے رول کے آتے ہیں. تو جیم چے ہے کھے کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کہیں بھی آ سکتے ہیں. اگر ان سے لفظ بننے کی شروعات ہو رہی ہے تو یہ اس طریقے کی شکل سے آئیں گے. لیکن اگر یہ بیچ میں آ رہے ہیں لفظ کے تو یہ اس طریقے سے آئیں گے. اور اگر آخر میں آ رہے ہیں تو آخر میں تو ہم نے پڑھا ہی ہے کہ جو حروف جس پر ختم ہو رہا ہوتا ہے لفظ, جس حروف پر وہ حروف مکمل بنایا جاتا ہے. تو یہ رہا مکمل آپ کا. یہ دیکھیں گے آپ کہ اگر اسٹارٹنگ میں آئے گا تو اس طریقے سے آئے گا, بیچ میں آئے گا تو اس طریقے سے آئے گا, اور آخر میں آئے گا تو اس طریقے سے آئے گا. جیم چے ہے کھے کا یہ رول تھا. اچھا, رے اڑے زے سے دال ڈال زال, اور یہاں پر آپ لگا سکتے ہیں الف اور یہاں پر لگا سکتے ہیں آپ واو. سیم رول ہیں ان کے, سیم رول ہیں ان کے. ٹھیک ہے, الف رے اڑے زے سے دال ڈال زال اور واو. ان سے پہلے کوئی لفظ چاہے ہو تو وہ جڑا ہوا ہو سکتا ہے. جیسے کہ الف سے پہلے بھی اگر ہم مثال کے طور پر دیکھیں, الف سے پہلے بے بھی تو ہو سکتا ہے, یہ ربا ایسے بھی تو ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے رے سے پہلے اگر کچھ ہے, رے سے پہلے اگر کوئی حرف ہے, جیسے مان لیا جائے بے ہے, بے میں تو رے جڑ سکتا ہے, لیکن رے پھر اپنے آگے حروف کو نہیں جوڑے گا. اور رے کو ملانے کا طریقہ یہی ہے کہ یہ ہلکا سا گھما کے, یہ دیکھیے یہاں دکھایا جا رہا ہے آپ کو, تصویروں کو مدد لیجئے. میں آپ سے پھر سے یہی کہوں گی, تصویروں کی مدد لیجئے. یہاں دکھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ان کے رول الگ سے آپ سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آرام سے آپ سمجھ سکتے ہیں, مطلب کہ یہ اپنے آگے کسی کو نہیں جوڑیں گے, یہیں پر ہی ٹوٹ جائیں گے. یہ بس لفظ چاہے مکمل ہو جائے گا لیکن حروف یہیں پر ہی یہ ٹوٹ جائے گا. اور دال ڈال زال کا بھی یہی ہے. ٹھیک ہے, تو دال کی آپ کیا ہے, اچھا 3 ایسے حروف ہیں جن پہ توئیں لگ رہے ہیں, تو ان پہ بالکل بھی کنفیوز مت ہوئیے. دیکھیے میں نے رے اڑے کو اس حوالے سے آپ کو بتا دیا کہ گول کر کے گھما کر آئے گا اس طریقے سے, لیکن دال ہمارا اس طریقے سے نہیں بن رہا, دال ہمارا بن رہا ہے اس طریقے سے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ڈال, ڈال کی بات کر رہے ہیں ہم یہاں پر. ٹھیک ہے, تو دال ہمارا اس طریقے سے بن رہا ہے. یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے. تو ڈال ہمارا اس طریقے سے ہو گیا, اور اگر اڑے ہوا تو اڑے ہمارا اس طریقے سے بنتا ہی. لیکن جب ہم ملانے کی شکل کی بات کر رہے ہیں تو ملانے کی شکل میں وہ گھوم کر آئے گا. تو آپ کو شناخت ہو جائے گی کہ آپ کو اگر اس سے پہلے جیسے یہ مل گیا, اس سے پہلے مل گیا, اگر آپ نے اس کو واضح نہیں کرا نا, اس طریقے سے نہیں بنایا, اس کو رے کو اس طریقے سے بنا دیا, تو یہ غلط ہو جائے گا. رے کو دال کی طرح بنا دیا آپ نے تو یہ غلط ہو جائے گا, پھر آپ کے پڑھنے میں نہیں آئے گا. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ یہ جو رول ہیں ان کو آپ یاد رکھیں. الف رے اڑے زے سے اور دال ڈال زال اور واو, یہ اپنے آگے حروفوں کو نہیں جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. سین شین کے حوالے سے ہم نے سب سے پہلا رول جو جانا تھا وہ یہی تھا. ان کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے ہم نے بے پے تے ٹے کو پڑھا ہے, جیم چے ہے کھے کو پڑھا ہے, اسی طرح سے سین شین بھی ہیں. یہ بیچ میں بھی آ سکتے ہیں, شروع میں بھی آ سکتے ہیں, آخر میں بھی آ سکتے ہیں. جیسے کہ آپ کو 3 شکلیں نظر آ رہی ہیں ان کی صرف اردو زبان میں آپ کو 3 شکلیں ہی نظر آئیں گی. ان کو پہچاننے کا طریقہ بس یہی ہے کہ آپ نے 3 چوچے بنانے ہیں یا 3 چوچے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ یاد رکھنے ہیں آپ کو, بس 3 چوچے. اور اگر لفظ سین پر مکمل ہو رہا ہے, یعنی سین حروف پر مکمل ہو رہا ہے, تو یہ مکمل ہی لکھا جائے گا. سین سواد زواد کے تعلق سے بھی یہی بات ہے کہ یہ 3 شکلوں میں آپ کو دکھائی دے گا. ٹھیک ہے, یہ بھی 3 شکلوں میں دکھائی دے گا. اسٹارٹ میں آئے گا تو اس طریقے سے آئے گا. لمبا بنانا ہے آپ نے اس کا سر, بیچ میں بنائیں گے تو آپ یہ بھی بیچ میں کہیں بھی آ سکتا ہے. جس طریقے سے ہم نے باقی حروفوں کے ہم رول پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں, سین شین کا پڑھا ہے ہم نے, اسی طرح سے سواد زواد کے تعلق سے بھی بات یہی ہے کہ کہیں بھی آ سکتے ہیں حروف ان سے
लफ्ज इनसे शुरू भी हो सकता है, बीच में भी आ सकते हैं ये, और एंड में भी आ सकते हैं। बस इनकी जो पहचान है वो इनका लंबा सर है, लंबा सर घूमा हुआ इस तरीके से, लंबा गोल सर इस तरीके से। अब यहाँ पर भी हरूफ जोड़ा जा सकता है और यहाँ पर भी हरूफ जोड़ा जा सकता है, और एंड में आएगा तो ये मुकम्मल आएगा, ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। और तोए जोए भी यही है, इनकी भी 3 शक्लें आपको दिखाई देंगी, लेकिन ये आधे नहीं आते। तोए जोए के ताल्लुक से ये मैंने बात क्लियर कर दी थी पहले ही कि ये आधे नहीं लिखे जाते, जहां भी लिखे जाते हैं वो मुकम्मल लिखे जाते हैं, कहीं पर भी आधे नहीं लिखे जाते हैं। तो इसको तो याद रखने की मुझे नहीं लगता कि, अगर आपको तोए जोए पता है, तोए की आवाज पता है, जोए की आवाज पता है, तो आप इसको कहीं पर भी पहचान लेंगे। बज़ाहिर ये बिल्कुल साफ साफ आपको नजर आएगा इसी तरीके से, तोए खाली और जोए पर नुक्ता, कहीं पर भी आ सकते हैं, शुरू में, बीच में और आखिर में। एन गेन का भी यही है, एन गेन की भी आपको 3 शक्लें नजर आएंगी। अगर ये हुरूफ इनसे, अगर लफ्ज इनसे शुरू हो रहा है तो ये इस तरीके से आएगा, ठीक है, गैन आधा, ठीक है। लेकिन अगर बीच में गैन आ रहा है तो हमने ये पढ़ा था, बीच में अगर गैन आ रहा है हमारा तो हम, हमारा इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आपको 2 कोनों वाला बनाना है, गोल नहीं बनाना है इसको, 2 कोनों वाला इसको बनाना है। आप इसके पीछे भी हरूफ जोड़ सकते हैं, इसके आगे भी हरूफ जोड़ सकते हैं। एन अगर आपका किसी लफ्ज के बीच में आ रहा है तो वो इस तरीके से दिखना चाहिए, ठीक है। और अगर कहीं पर एंड में आ रहा है तो मुकम्मल ही आएगा। जैसे कि हम लिखते हैं बालिग, तो ये लाम में गैन हमने मुकम्मल जोड़ा है, बालिग। तो काफ मीम के ताल्लुक से हमने ये पढ़ा था कि इनका सिर्फ ये गोल गोल है, अगर ये गोल गोल खाली है तो ये मीम है, गोल गोल पर एक नुक्ता है तो फे है, गोल गोल पर 2 नुक्ते हैं तो काफ है, ये हमने समझा था। अच्छा, मीम के ताल्लुक से आप ये याद रखें कि अगर आप कोई मीम से शुरू कर रहे हैं लफ्ज को, तो आप मीम को ऊपर रख लीजिए, इस तरीके से बना दीजिए, जैसे कि मीम आप बनाते हैं तो वो आप इस तरीके से आप बनाते हैं मीम, है ना, आप आम लिख रहे हैं। लेकिन अगर आप मीम में किसी चीज को जोड़ रहे हैं तो कोशिश करें कि मीम को है ना नीचे की तरफ दिखाएं, ऊपर की तरफ ना दिखाएं, क्योंकि ऊपर की तरफ जो होता है वो फे होता है अमूमन, लेकिन फे पर नुक्ता होता है। हालांकि हम समझ जाएंगे, लेकिन जो खूबसूरती आती है ना, खूबसूरती की बात कर रही हूँ मैं, तो वो नीचे से आती है, जब नीचे से मीम बनकर आता है। जैसे कि हमें मार्च लिखना है तो ये मीम को आप देखेंगे कि मैंने ये नीचे से बनाया है, अगर मैं इसको ऊपर से करके बनाऊं तो ये ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, तो ये अच्छा सा नहीं लगेगा। इसको आप नीचे से करके बनाए, ऐसे नीचे से करके बनाए आप इसको, मीम अलिफ माँ, और फिर आपने रे लिखा और आपने चे लिखा, ये तो ये हो गया मार्च। तो इस चीज का हुर्फों को बनाने में जो, क्योंकि जो लोग नए हैं तो उन्हें पता नहीं है कि किस तरीके से लिखा जाता है। एंड में हाँ लगाने में हम लिख रहे हैं दिसंबर लिख रहे हैं, यहाँ पर हमारी गलती हो रही है कि हमें नहीं पता कि हम मीम यहाँ नीचे बनाए, ठीक है, नीचे बनाएंगे तो खूबसूरत लगेगा आपका लफ्ज, ये दिसंबर हो गया आपका। कोई अगर आप ऊपर बना देते, बनाने को बना सकते हैं, लेकिन वो खूबसूरती नहीं आती, आपको दिखेगा कि वो नीचे ही होता है। और बल्कि आपको तो गोल गोल भी नहीं नजर आएगा, अगर आप बुक पढ़ेंगे तो उठाकर, उन्होंने वैसे बना हुआ होता है वो उनका, बस उसका छेद भी नहीं होता, छेद भी नहीं होता उसमें, ठीक है। काफ गाफ के ताल्लुक से हमने ये बताई थी कि इसकी इतनी सारी शक्लें होती हैं, इसकी 3 शक्लें नहीं है, आप देखेंगे इसकी 3 शक्लें नहीं है, ठीक है, इसकी कई शक्लें हैं। देखिए मैं समझाती हूँ, एक तो काफ ये नॉर्मली है,
کوئی لفظ اگر ہم بنا رہے ہیں الف کو چھوڑ کر اور لام کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے، تو وہ اس طریقے سے آئے گا. اگر لیکن کاف کو الف کے ساتھ ہم لکھ رہے ہیں تو کاف کو الف کے ساتھ ہم لکھیں گے اس طریقے سے. کاف کو الف کے ساتھ لکھیں گے، گاف کو الف کے ساتھ. اس کا الگ سے نہیں بتاؤں گی میں گاف کو، ٹھیک ہے، آپ خود سمجھ جائیے گا. بیچ میں کہیں آ رہا ہے کاف تو آپ نارملی یہی والے کاف کا استعمال کریں گے. اس طریقے سے ادھر سے بھی جڑ جائے گا، یہ ادھر سے بھی جڑ جائے گا. بیچ میں کہیں کاف آ رہا ہے. صرف میں 2 حرفوں کے حوالے سے آپ کو بتا رہی ہوں. پہلا تو ہو گیا الف، ہے نا، اور دوسرا میں بتا رہی ہوں آپ کو لام کے حوالے سے. آپ لام کے حوالے سے اگر آپ اس کو جوڑیں گے تو آپ اس کو اس طریقے سے جوڑیں گے. آپ نے لکھنا ہے کل، یہ کل اس طریقے سے آئے گا. آپ لکھتے ورنہ کل ایسے، اگر آپ کو نہیں آتا اردو لکھنا تو آپ کل ایسے لکھتے اور یہ بالکل بھی خوبصورت نہیں لگتا. ٹھیک ہے، تو کاف کو اگر ہم کسی کاف کے آگے کوئی لام آ رہا ہے تو آپ کو ایسے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہی والے میں لام جوڑ دینا، یہی والے ہے، لیکن بس سمجھانا بہت ضروری ہے اس وجہ سے. جیسے کہ آپ نے ایک جو ابھی آپ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں منگل آپ نے پڑھا ہے، یہ منگ آ گیا، اس کے بعد گاف میں لام جڑ گیا، منگل ہو گیا. باقی اینڈ میں جو حروف مکمل آتا ہے وہ مکمل ہی آئے گا اور وہ مکمل کی شکل سیم رہتی ہے، اس میں کوئی چینج نہیں ہے. لام کے حوالے سے یہ بات تھی کہ لام کہیں بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، لام کہیں بھی آ سکتا ہے. جیسے کہ ہم نے باقی حروف جو پڑھے ہیں، چین چین پڑھا ہے، سواد جواد پڑھا ہے، تون گون پڑھا ہے، ٹھیک ہے، جین سے ہے تھے پڑھا ہے، بے تھے تے پڑھا ہے، سارے جو حروف پڑھے اسی طرح سے سیم لام کا رول ہے. لیکن لام کو سمجھنے کے لیے اس کو الگ سے اس لیے رکھا گیا ہے، اس کو اس لیے الگ سے رکھا گیا ہے کیونکہ لام کو سمجھنے میں کنفیوژن ہوتی ہے. ہم اس کو الف سمجھ لیتے ہیں بعض دفعہ، ہے نا، الف سمجھ لیتے ہیں. لیکن الف کا رول ہم نے پڑھا تھا کہ الف اپنے آگے حروف کو نہیں جوڑتا، لیکن لام ایسا نہیں کرے گا. لام اپنے آگے بھی جوڑے گا اور پیچھے بھی جوڑے گا. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو اس طریقے سے کچھ مل جائے کہ یہ دیکھیں یہ والی شکل، بیچ والی شکل پہ دھیان دیں. اگر اس طریقے سے اگر آپ کو کچھ دکھ جائے تو آپ اس کو الف نہیں سمجھیں گے، آپ اس کو لام ہی سمجھیں گے، چاہے وہ کچھ بھی ہو. ٹھیک ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی سا بھی حرف ہو سکتا ہے، اس کے آگے بھی کوئی سا بھی حرف ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ لام ہے، الف نہیں ہو سکتا. یہ الف کا مطلب ہوتا ہے تو پھر آگے حروف کوئی سا بھی جڑا ہوا نہیں ہوتا. اس کے بعد ہم نے نون گننا کے حوالے سے بات کی تھی اور ہم نے یہ جانا تھا کہ نون گننا کیا ہوتا ہے. نون گننا وہ ہوتی ہے انکی بلی، اور نون گننا کی کوئی آدھی شکل نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتا ہے. نون گننا لفظ کے آخر میں آتا ہے، بیچ میں نہیں آئے گا یہ کہیں پر بھی. ٹھیک ہے، تو جب ہم لکھیں گے ماں، تو ہم اس طریقے سے لکھیں گے ماں، ورنہ یہ صرف ماں ہو جاتا اگر ہم اس پہ نون گننا نہیں لگاتے تو. یہ انکی بندی کا کام کر رہا ہے اینڈ میں. ٹھیک ہے، اور آخر میں آئے گا، لفظ کے آخر میں آئے گا. نون گننا سے بہت سارے لفظ بنتے ہیں اور ہم نے وہ سیکھے بھی تھے. ماں، اس کے بعد ہاں، میں، یہ سارے ہم نے وہاں، یہاں، پاؤں، گاؤں. واؤ کا رول میں ابھی آپ کو بتا چکی ہوں، اس کو الگ سے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اس میں ہی آپ کو کلیئر کر دیا ہے کہ الف رے اڑے جے سے اور دال ڈال زال، اس کے بعد واؤ، یہ وہ حروف ہیں جو اپنے آگے کسی بھی حروف کو نہیں جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، پیچھے جوڑ لیں گے یہ، جیسے کہ واؤ ہے تو واؤ اپنے آگے اپنے پیچھے کسی بھی لفظ کو جوڑ لے گا، لیکن یہ آگے پھر کسی کو نہیں جوڑے گا، یہیں پر ہی ٹوٹ جائے گا پھر یہ. اور
लफ्ज मुकम्मल हो सकता है लेकिन ये हुर्फ नहीं टूट गया। दो चश्मियों के हवाले से हमने ये बात करी थी कि दो चश्मियों का पूरी तरह हुर्फ तहज्जी में सिर्फ ये काम है कि कुछ हुर्फों के साथ मिलकर जब ये आता है तो इसकी आवाज भारी हो जाती है। वैसे तो ये दो चश्मी है लेकिन इसकी आवाज हा की होती है। और ये जिन हुर्फों के साथ मिलकर आता है वो है बे, पे, ते, टे, जीम, चे, दाल, डाल, अड़े, काफ, गाफ। हमने ये समझा था कि इसके साथ लग के जो ये बनता है, जैसे कि बे के साथ अगर दो चश्मे मिल जाएगी तो घ बन जाएगा, पे के साथ अगर दो चश्मे मिलेंगे तो फा बनेगा, फा। ठीक है, जैसे फल होते हैं, फूल होते हैं। ते के साथ अगर दो चश्मे मिलेंगी तो था बनेगा, टे के साथ दो चश्मे मिलेंगी तो ठा बनेगा, जिन के साथ दो चश्मे मिलेंगी झ बनेगा, गाफ के साथ दो चश्मे मिलेंगी तो घ बनेगा, चा के साथ दो चश्मे मिलेंगी तो छा बनेगा, छतरी वाला। दाल के साथ दो चश्मे मिलेंगी तो धा बनेगा, धनुष वाला। डाल के साथ दो चश्मे मिलेंगे तो ढा बनेगा, ढोलक वाला। अड़ा के साथ दो चश्मे मिलेंगी तो अढ़ बनेगा, काफ के साथ दो चश्मे मिलेंगी तो खा बनेगा। और ये खा से खरगोश वाला बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अलिफ से लेकर या तक सारे हुरूफ तहज्जी के हमने सारे रूल समझ लिए थे। उसके बाद फिर हम कहाँ पर आए थे? हम आए थे वोवल वर्ड्स पर, यानी कि अब हम आ गए थे हरकत पर। अब तक हमने जो भी लफ्ज बनाए थे वो बिना हरकत के बनाए थे। हरकत कहते हैं मात्रा को, बिना मात्राओं के हमने जो भी लफ्ज बनाए थे बिना मात्राओं वाले बनाए थे। अब, जब, सब, आप, जब, इस तरीके के बनाए थे हमने। हमने कोशिश की थी कि हम कोई भी मात्रा वाला लफ्ज इस्तेमाल ना करें ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और हमने पहले ही स्लाइड पर ये जान लिया था कि उर्दू अल्फाज लिखते वक्त छोटी ई और छोटे ऊ की मात्रा नहीं लगती है, नहीं ये मात्रा उर्दू लैंग्वेज में एग्जिस्ट करती है। आपको बिल्कुल मैं इतनी आसानियों के साथ एक्सप्लेन कराया ना कि आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से। अगर मैं स्टार्टिंग से ये आपको करवाती भी चलती ना, फिर आपको आगे जाके बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता, वो मैं बताऊंगी आपको कि किस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम हरकत सीखने के लेवल पर आए थे तो हमने सबसे पहले आखिरी मात्रा को जाना था। और हमने ये समझा था कि आखिरी मात्रा तो हम पहले सीख चुके हैं, क्योंकि मैंने जितने भी हर्फ आप लोगों को बताए उनके साथ में मैंने आपसे कहा था कि आप सबके साथ अलिफ लगाते हुए चलिएगा। तो जब आपने सीखा था कि बे तो शोशे के नीचे एक नुक्ता लगाने पर बे बन जाता है, तो फिर मैंने उसके कहा था कि उसके साथ अलिफ भी जोड़िए, तो अलिफ इस तरीके से जुड़ेगा। तो हमने जितने भी अलिफ से लेकर या तक हुर्फ तहज्जी के हुरूफ सीखे थे उनके साथ में आप अलिफ लगाना वैसे ही सीख रहे थे। तो आपने अलिफ यानी कि आखिरी मात्रा को वहां पर सीख लिया था, लेकिन आपने जो नहीं सीखा था ना वो अलिफ पर आखिरी मात्रा को नहीं सीखा था। बस यही स्किप हुआ था। और अलिफ पर आखिरी मात्रा लगाने के लिए हम मद ज़बर का इस्तेमाल करते हैं। अलिफ से कोई भी ऐसा लफ्ज शुरू हो रहा हो जो बड़े आ की आवाज निकाल रहा हो तो आप उस पे मद ज़बर लगा के आगे का लिखवाएंगे। जैसे कि आप लिख रहे हैं आप, तो अलिफ मद ज़बर आ लगाया आपने तो और पे लिख दिया तो ये हो गया आप। आप लिख रहे हैं आगे, अलिफ मद ज़बर आ लगाया आपने, उसके बाद आपने लिखा आग। लिख रहे हैं आप, अभी आगे नहीं करा रही हैं, आग लिखिए, आग। ठीक है, आल हो गया। इसी तरीके से हमने आखिरी मात्रा को समझा था कि वो आखिरी मात्रा आ के साथ और बाकी रुपयों के साथ किस तरीके से आएगी। उसके बाद हमने एक ही मात्रा को समझा था कि एक ही मात्रा के लिए हमने क्या करना है, छोटी ए का इस्तेमाल हम चोचा लगाकर जिस तरीके से करते हैं उसी तरीके से करेंगे। लफ्जों के बीच में छोटी ए, अगर हम जो भी लफ्ज हम लिख रहे हैं, जैसे अगर हम लिख रहे हैं नेक, इस लफ्ज को ट्रांसफर करते वक्त सबसे पहले हम, अगर यहाँ पर ना है, ना से ना की आवाज निकल रही है और ना बनता है नून से। ठीक है, तो नून यहाँ पर हमने बनाया। उसके बाद ना के बाद आवाज हमारी जो निकल रही है वो एक ही निकल रही है, ने। ठीक है, तो उसके लिए हम एक शोशा और लगा देंगे और एक ही मात्रा देने के लिए या पर या का शोशा देकर या के नुक्ते लगा देंगे, तो ये एक ही मात्रा हो गई हमारी, ये हमारी एक ही मात्रा हो गई, ये ने हो गया। ठीक है, इसी में हमने
क्या जोड़ना है अब क जोड़ना है, का बनता है काफ से, और ये काफ आपका इसी तरीके से बनेगा जिस तरीके से ये बनता है। ये हो गया आपका नेक। इस तरीके से समझा था हमने कि एक ही मात्रा को हम किस तरह लिखेंगे। उसके बाद हमने ये बताया था आपको कि बड़ी ई की मात्रा, क्योंकि छोटी ई की मात्रा तो हमने पहले ही कैंसिल कर दी ना, तो छोटी की मात्रा नहीं होती, इसीलिए हम डायरेक्टली बड़ी ई पर आ गए। हाँ, बड़ी ई की मात्रा जो है हमारी, वो यहाँ पर लफ्जों के बीच में लगेगी। अच्छा, यहाँ पर जो एक चीज वो जो ध्यान में रखने की है वो ये है कि एक ही मात्रा यहाँ पर लफ्जों के बीच में आएगी हमेशा, आखिर में नहीं आ सकती वो। ठीक है, लफ्ज के आखिर में ही आ सकती, जैसे कि नेले, डेले, ऐसे नहीं आ सकती, बस लफ्ज के बीच में आनी चाहिए, बीच में, आखिर में नहीं आनी चाहिए। आखिर में अगर कोई मात्रा आ रही है तो फिर वो मात्रा इनमें से आप देखकर लगाएंगे कि कौन सी मात्रा है वो, जैसे कि ये आ की है और ये ए और ए की है, ठीक है, और ये ऊ की है और ये एक की है। अब यहाँ पर एक की मात्रा आप ये देख सकते हैं कि एक तो ये वाली हो गई, ये वाली हो गई। अब इसको समझने के लिए फिर हमने आगे समझा था। तो अभी हम बात कर रहे हैं एक ही मात्रा की, फिर लफ्जों के बीच में आती है, लफ्जों के बीच में आएगी तो हम तब लगाएंगे या पे दो नुक्ते। लफ्ज के बीच में जब एक ही मात्रा आएगी तब हम या के दो नुक्ते लगाकर एक ही मात्रा को दिखाएंगे या बनाएंगे। उसके बाद हम बड़ी ई की मात्रा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बड़ी ई की मात्रा के लिए जो बात कर रहे हैं वो दोनों तरीके से बात कर रहे हैं कि लफ्ज के बीच में आ जाए या आखिर में आ जाए, लफ्ज के बीच में आ जाए या आखिर में आ जाए, वो हम छोटी या ही लगेगी, छोटी या के नुक्ते लगेंगे या अगर लफ्ज के बीच में आएगी बड़ी ई की मात्रा, किसी लफ्ज के बीच में आ रही है, ठीक है। जैसे कि हम लिख रहे हैं दलील, क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं दलील। दलील जब हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर हमने ये देखा कि ये जो लफ्ज है, ये जो शब्द है हमारा, इस शब्द के बीच में आ रही है ये, चाहे यहाँ आ जाए चाहे यहाँ आ जाए, यहाँ नहीं आनी, यहाँ भी आ जाएगी, ठीक है ना। तो अगर बीच की बात कर लेते हैं, सबसे पहले अगर बीच में आएगी तो कैसे लिखेंगे, दाल लिख दिया, ला लिख दिया। बड़ी ई की मात्रा के लिए हमने वही शोषण लगाया और या के नुक्ते लगाए, ठीक है, ये दली हो गया। उसके बाद लाम इसी में जोड़ दिया, ये हो गया हमारा दलील। अब एंड की अगर बात आ रही है, जैसे कि आप लिख रहे हैं दानी, किसी लफ्ज के आखिर में आ रही है, अगर बड़ी ई की मात्रा तो उसको कैसे लिखेंगे आप, तो आप उसको इस तरीके से लिखेंगे, आपने दाल लिखा, आ की मात्रा के लिए अलिफ लिखा, उसके बाद आपने नून है, ना है यहाँ पर, तो आपने नून का शोषण लगाया। उसके बाद बड़ी ई की मात्रा के लिए आपने मुकम्मल या बनाना है। पहला तो इसमें यही समझ लीजिए आप, जो भी हुर्फ होता है वो मुकम्मल बनाया जाता है, पहला तो यही आ गया। और दूसरी चीज, बड़ी ई के लिए हम या का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एक ही मात्रा अगर लफ्ज के बीच में आ रही है, जैसे कि इसको दलील भी पढ़ा जा सकता है और इसको दलील भी पढ़ा जाए, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हम सेंटेंस क्या पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमने ओ की मात्रा को जाना था, ओ औ या ऊ की मात्रा हमारी वाव से ही आएगी, चाहे वो ओ की मात्रा आ रही हो, चाहे हम डोल लिख रहे हो या हम डॉल लिख रहे हो या हम डूल लिख रहे हो, सब जगह हम क्या लिखेंगे, वाव ही लगाएंगे, कुछ और नहीं लगाएंगे। ये हो गया हमारा रोज। ओ की मात्रा हो गई हमारी। हम लिख रहे हैं खजूर,
آپ نے لکھنا ہے یہاں پر کبوتر. اچھا یہ کہیں پر بھی ہو آپ کی ماترا نا, چاہے لفظ کے شروع میں ہو, آخر میں ہو, یا کہیں پر بھی ہو, آپ نے واؤ ہی لکھنا ہے. کا کے لیے آپ کیا لکھیں گے؟ کا لگائیں گے. با کے لیے آپ با کا چوکھے لگائیں گے. اب او کی ماترا کے لیے آپ اس میں واؤ جوڑ دیں گے. یہ ہو گیا آپ کا کبو. اب تا اور را لکھنا ہے آپ کو. تا کے لیے آپ نے نقطے لگائے اور اس میں آپ نے را جوڑ دیا. یہ ہو گیا آپ کا کبوتر. تو یہ بڑے او کی ماترا ہو گئی آپ کو. اس طرح سے آپ بڑے او کی ماترا کا استعمال کریں گے. یہ ہم نے سمجھ لیا تھا. چاہے وہ جون ہو, چاہے وہ جوتا ہو. جون بھی ہم نے لکھا تھا کہ جین میں واؤ جوڑا, اس کے بعد نون لگا دیا, تو یہ جون ہو گیا ہمارا. اس کے بعد اے کی ماترا ہم نے یہ بتانے کے لیے آپ کو بتایا تھا کہ اے کی ماترا یہاں پر جب ہم نے استعمال کی تھی تو وہ لفظوں کے بیچ میں کی تھی, لیکن یہاں پر اے کی ماترا ایسی اے کی ماترا ہے جو لفظ کے آخر میں آ رہی ہے. اس کے لیے ہم بڑی اے کا استعمال کریں گے. اور بڑی اے یہاں پر پورے حروف تہجی میں اردو زبان میں آئی ہی اس لیے ہے کہ یہ لفظ کے آخر میں اے کی ماترا بنا سکے. اس کے علاوہ اس کا کوئی اور استعمال اردو زبان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ لکھ رہے ہیں کالے. کاف الف اسی طریقے سے لکھا جاتا ہے. آپ نے لام بنایا اور بڑی اے اس میں جوڑ دی, تو یہ ہو گیا کالے. آپ نے لکھا بولے, بے واؤ بو بنایا, یہ آپ کا بولے ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے یہ آئی اور او کی بات کری تھی. یہ وہ لفظ ہیں جو ہندی میں نہیں آتے ہیں لیکن ہم اردو میں اس کا استعمال کرتے ہیں, جیسے کہ جائیے, کئی دفعہ. ٹھیک ہے, یا گاؤں پاؤں لکھنے کے لیے آپ کو واو حمزہ لگانے کی ضرورت ہے. والی آواز آپ کے اس میں نکل رہی ہے تو آپ بڑی اے حمزہ کا استعمال کریں گے. اگر ال کی آواز آپ سے نکل رہی ہے تو چھوٹی اے حمزہ کا استعمال کریں گے. اور اگر آپ کی آواز او کی نکل رہی ہے, آپ واو, اگر آپ کو دکھ رہا ہے واو حمزہ, تو وہ او کی ہی آواز ہوگی, اس میں کنفیوز مت ہوئیے گا. ٹھیک ہے, کہیں پر اگر آپ کو واو حمزہ, اس میں کنفیوز مت ہوئیے گا. یہ اس کے بعد انک بندی کو ہم نے پہلے ہی کور کر لیا تھا کہ لفظ جو ہے ہمارا کوئی بھی انکی بندی کے لیے اگر لفظ کے بیچ میں آ رہی ہے انکی بندی. اچھا, وہ جو ہم نے انکی بندی کی بات کری تھی وہ ہم نے بات کری تھی لفظ کے آخر میں, جب نون گننے کی بات کری تھی ہم نے, جب ماں لکھا تھا ہم نے, ماں, یہاں, وہاں, یہ وہ لفظ تھے جو لفظ کے آخر میں انکی بندی لگ رہی تھی. لیکن یہاں وہ لفظ ہیں جو لفظ کے بیچ میں آ رہی ہے, لفظ کے بیچ میں آ رہی ہے انکی بندی. ٹھیک ہے, آپ کہیں پر بھی کوئی سا بھی لفظ اٹھا لیں, وہ لفظ ہیں جو لفظ کے بیچ میں انکی بندی آ رہی ہے. آپ لکھ رہے ہیں سنڈے. ٹھیک ہے, ایسے لکھیں گے آپ سنڈے. اور اگر آپ کو اردو میں سنڈے لکھنا ہے, ویسے تو اتوار بولتے ہیں لیکن آپ کو سنڈے ہی لکھنا ہے کہ میں سنڈے کو ملوں گا, تو آپ کا سنڈے اس طریقے سے آئے گا. آپ نے سین بنایا ہے اور انک بندی کے لیے آپ نون کا استعمال کریں گے. یہ سن اور یہ ڈے. ٹھیک ہے, سنڈے. اسی طریقے سے منڈے آ جائے گا. لونگ آ گیا. ایک ایک سلائڈ سے نا بہت امپورٹنٹ ہے, اگر ایک ایک سلائڈ کو آپ بہت دھیان سے پڑھیں گے تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ.
लौंग लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी अंक की बिंदी लफ्ज के बीच में आ रही है, आखिर में नहीं आ रही है। आखिर की बात में फिर वही आ जाएगा आपका नून मुन्ना। तो यहाँ आप सबसे पहले तो लाम ही लिखेंगे। अब ओ की मात्रा के लिए आपको वाव लगाना है, अंक की बिंदी के लिए आपको नून लगाना है, गा के लिए आपको इसमें गाफ जोड़ना है। आपका हो गया लौंग, कोई सा भी लौंग कह सकते हैं इसको, लॉन्ग डिस्टेंस वाला भी कह सकते हैं या लौंग इलायची वाला भी लौंग कह सकते हैं, कोई सा भी लौंग हो सकता है ये। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया ये बिल्कुल अंक की बिंदी पर। तो यहाँ तक बताइए सबको क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन किसी भी तरीके की, कोई ऐसी बात जो मुझसे सही ना बोली गई हो या आपके समझ में ना आई हो? मैंने सही नहीं बोली होगी तो जरूर समझ में नहीं आई होगी, तो प्लीज मुझे बताएं, निशानदेही करें मेरी कोई गलती हो तो। अल्ताफ सिक्का आपके समझ में आया कुछ कुछ? हाँ जी मैम, आया, बिल्कुल आया। चलिए इंशाल्लाह बाकी सारी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। तो आज हम थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं और कल से हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। जी ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अल्ताफ सिक्का। अरे उल्टा उल्टा हाँ हो जी गया। मैम। एक मिनट मेरे मिस्टेक हो गई, रुक जाइए। टाइम लग जाएगा उसको मिटाने में, इसलिए शॉर्टकट का मामला कर रहे हैं। जी ये जो लफ्ज हैं आपके सामने, तो इनको उर्दू में बताइए कैसे लिखा जाएगा। ये वाला बताते हैं सबसे पहले, क्या लिखा हुआ है ये? अब चल, ठीक है बताइए। सबसे पहले मैम अलिफ लिखा जाएगा अलग से। वे लिखिए मैम अब। चल, अब चल।
और बे कैसे लिखना है? बे मैम पूरा ही आएगा इसमें। वेरी गुड। यहीं से देख तो नहीं रहे? कहाँ से देखूं? ठीक है। अब जिम लिखिए मैम। जिम हाँ कैसे बनाऊं? मैम, जो स्टार्टिंग वाला जिम आता ना, छोटा वाला अच्छा, वो। हाँ, अब इसके नुक्ता कहाँ लगाऊं? नीचे लगेगा नुक्ता मैम। नीचे कितने लगाऊं? हाँ, एक लगेगा। अच्छा, क्या लिखा हुआ है ये? सी और चे? अब सी। चल। हेलो। अच्छा, जी 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 जी। हाँ मैम, आम लिखिए लाम, मिला के लिखिए मैम, लाम जिम में मिला के। मिला के लिख दिया। अब पढ़िए इसको। अब चल। सही पढ़ रहे हैं? सही पढ़ रहा हूँ मैम। अच्छा, अगर हमें लिखना है अब जल, तो कैसे लिखेंगे? अब जल। जल, नहीं मैम, पानी छह वाला जल। आएगा इसमें, सॉरी, छह आएगा, तीन आएंगे नुक्ते मैम, सॉरी। यही तो ध्यान रखना है ना कि आवाज कहीं की निकल रही है। हाँ, ये बताइए ये कैसे लिखेंगे? मत मत। लड़। भीम आएगा मैम सबसे पहले। अच्छा, भीम मीम छोटा। कैसे लिखना है? छो, हाँ, छोटा सा आएगा नीचे से। हम्म। इसके बाद मैम त आएगा, त का सोसा आएगा, ऊपर दो नुक्ते आएंगे। क्वेश्चन नहीं आएगा, ते पूरा आएगा। पूरा आएगा, सॉरी, हाँ। लड़, मत। मत लड़। आम आएगा मैम, अब लाम। हम्म। और डाल वाला वो आएगा, डै। अड़े वाला आएगा, रबड़ वाला। ठीक है। हम्म, मत लड़। बस कर। ठीक है, बस कर बताइए। मैम, बस में बे का सोसा लिखिए, नीचे ठीक एक है। नुक्ता आएगा। ठीक है। और स में तीन नुक्ते आएंगे, ऊपर सीन वाला से आएगा, इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ मैम मैं, कौन सा हाँ से बस। आएगा। सीन वाला ज्यादातर सब जगह है ना, सीन ही इस्तेमाल कीजिए सब। हाँ, समझ गए? जी सब जी, जगह ये वाला इस्तेमाल कीजिए स में। ठीक है मैम। ठीक। हाफ आएगा मैम इसमें, हम्म। आगे स्पेस देखे। अब क्या लिखें? हाफ बस। लिखिए मैम, काफ। अच्छा, काफ। सुना नहीं था ना। हम्म, अब आएगा रे, आएगा मैम इसमें, हाँ, रे। अरे देखो घुमा के लिखेंगे बस कर। हम्म, ठीक है। ठीक है, आप भी बस कीजिए। हाँ मैम बताइए। इसमें, पूछिए पूछिए। मैम ये आपने जो रे लिखा है, इसमें जैसे जे लिखना हो तो इस हिसाब से उसमें क्या डिफरेंस आएगा थोड़ा सा? कुछ भी नहीं, एक नुक्ता ऊपर आ जाएगा, जे हो गया ये। बस। अड़े बनाना हो तो बना दो। कुछ भी नहीं डिफरेंस होता, सेम होता है सब। ठीक है मैम। ठीक है। और कोई, और कौन लिखना चाहेगा? फटाफट हैंड रेस कीजिए, टाइम भी कम है। कल से तो इंशाल्लाह रीडिंग करेंगे, फिर इमला बोला जाएगा आपका। हर तीसरे दिन आपका इमला हुआ करेगा। इमला बोले तो डिक्टेट। फरहीन फातिमा, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम मैम, आवाज आ रही है मेरी? ये आ रही है आपकी आवाज। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाँ। मत तो डर में लिखेंगे, मीम का शोषा बनाएंगे, और फिर उसके बाद त पूरा लिखेंगे। हम्म। मत, और डर में वो ड लिखेंगे, अड़े वाला ड लिखेंगे। अड़े वाला डा नहीं आएगा इसमें, डाल वाला डा आएगा।
दाल वाला, हाँ दाल ऐसे होता है, देखो दाल ऐसे होता है, फिर उसके ऊपर छोटा वाला वो बनेगा बी टाइप। हाँ, और फिर उससे मिलाकर हम लिख देंगे नहीं, मिला के नहीं लिखेंगे, सॉरी अलग लिखेंगे अलग लिखेंगे हाँ मस्तूर दाल। और फिर सच क्या है, तीन बनाएंगे, तीन उसके मतलब वो आधा वाला बनाएंगे तीन। और फिर च लिखेंगे वो जो जीम वाला जो पूरा बनाएंगे, और नीचे वो बनाएंगे अंदर तीन नुक्ते बनाएंगे। फिर सच ठीक है, उसके बाद काफ काफ लिखेंगे है, और फिर ह लिख देंगे इसी में जुड़ जाएगा फिर, सच के हाँ ऐसे ही होता है, सच के, ठीक है। अच्छा, उसमें मतलब नीचे ह लगा, अच्छा आपने हाँ, ये काफ के हाई नीचे ह लगा, हाँ, हाँ ठीक है तुमने ठीक देखा है, था ना, हाँ ऐसे ही जुड़ा हुआ था। हाँ 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 ठीक है। मैम इसमें लास्ट में है का साउंड आ रहा है, तो नून गुन्ना आएगा क्या इसमें? सच का है? हा के साउंड में थोड़ी आता है नून गुन्ना, नून गुन्ना अंक की बिंदी में आता है, अंक की बिंदी में आता है नून गुन्ना। ठीक है। इसमें हा का साउंड हो रहा है, सच कह हो गया ये। अब आ रहा है तह कर, अब तह कर लिखना है हमें, तो ये है आ गया हमारा, ते के नुक्ते आ गए ये, और ये जो है ये है नीचे लटका हुआ, ऐसे बना देते हैं तह कर। अब इसमें अब इसमें आ रहा है रह। अब इसमें देखिए फर्क क्या आ रहा है, आएगा पहले कल तक रहे, तो इसमें जो रहे आ रहा है उसमें रे का ये रूल है कि वो आगे किसी भी हुरूफ को जोड़ नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो। तो अब इसमें हा का साउंड निकालना है हमें, तो क्या करेंगे हम, यहाँ हा पूरा बना देंगे हम, ये वाला रह, समझे। हम देखते हैं कि यहाँ पर पे को हे से जोड़ा जा सकता है, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा, इसको सही से लिखने की कोशिश करती हूँ अगर पेन चल पाए तो। इस तरीके से लिटका होता है, सॉरी ये 3 चोचे नहीं आएंगे, एक ही चोचा आएगा तह के लिए, ये इस तरीके से, ये देखिए ये बिल्कुल सही बना है तह, इस तरीके से आएगा ये तह। तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस करना चाहें, जो भी है मैं लफ्ज ये भेज दूंगी, स्लाइड्स भेज दूंगी आपको, इसके मशक करके आप लोग देखिएगा, और इंशाल्लाह फिर स्टार्ट करते हैं कल से किताब पढ़ने की कोशिश करेंगे जितना भी हमसे आएगा। और किसी का कोई सवाल हो तो कर सकता है। तो मिलते हैं शाम को मुताला कुरान क्लास में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला के अहकामों का ख्याल रखना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।